کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے ملتان میں بھی حکومت پنجاب کی طرف سے مفت آٹے کی تقسیم جاری۔ مفت آٹا رمضان پیکج کے تحت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ سیل پوائنٹس بڑھانے اور اچھی مینجمنٹ سے شہری جہاں خوش ہیں، وہیں آٹے کے حصول میں آسانی ہونے پر حکومت کو صراحتیں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں حسن ملک کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب بھر کی طرح شہر اولیا میں بھی رمضان پیکج کے تحت مفت آٹے کی تقسیم جاری۔ حکومت نے شہریوں کی سہولت کے لیے آٹا پوائنٹس کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ اس موقع پر شہریوں کو کہنا تھا کہ حکومت کے اس احسن اقدام کو سراہتے ہیں۔ پہلی مرتبہ کسی نے غریب کا سوچا ہے۔ شکریہ، مل گیا، آسانی سے مل گیا، کوئی تنگی بھی نہیں ہوئی۔ ہاں، شکر ہے اللہ کا۔ رمضان دی وجہ تو انہاں ساکوں پیکج دیتے، ان مفت فری آٹا پیا مل دے، صحیح مہربانی شکریہ ادا کرے نے۔ گورنمنٹ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں، میں تو پہلی دفعہ ہی آئی ہوں، سکون سے مل گیا آٹا، بس مدد کر دی انہوں نے۔ مفت آٹا ملنے پر شہری خوشی سے نہال دکھائی دیے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ رش کے باوجود کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا۔ عملہ تعاون کر رہا ہے، انتظامات بھی اچھے ہیں۔ آٹا صحیح ملتا پیا، کوئی تنگی چنگی کوئی نہیں، کوئی پریشانی کیا نہیں، بس فائدہ ہے ماشاء اللہ۔ گھر ہی تنگی ہے پی، آٹا گھن گئی تھیلی آئیں پہ ملا، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ ان کو بہت کچھ دے، مہربانی ہوگی ان کی۔ انہوں کا شکر ہے، انہیں انسان کی دیتا ہے، مہربانی انہوں دی، سارا کوئی پیسہ تنے آسانی نال ملا ہے۔ شہریوں نے حکومت کے مفت آٹا دینے کی پالیسی کو سراہتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ انہیں آئندہ بھی اس طرح کے ریلیف ملتے رہیں گے۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ حسن ملک، روہی، ملتان۔ قطار نہ انتظار، دھکم پیل ہے نہ دیں۔ رمضان پیکج کے تحت مفت آٹے کا حصول مزید آسان۔ شہر کے بڑے سیل پوائنٹس ہاکی اسٹیڈیم میں کاؤنٹرز کی تعداد 10 کر دی گئی۔ شہری بآسانی آٹا لے کر خوشی خوشی گھر لوٹنے لگے۔ طاہر جویہ کی رپورٹ میں دیکھیں گے۔ انتظامیہ کی کاوشیں رنگ لے آئیں، بہاولپور کی آٹا قطاروں سے جان چھوٹ گئی، اب قطار ہے نہ انتظار۔ رمضان ریلیف پیکج کے تحت مفت آٹے کا حصول مزید آسان ہو گیا۔ شہر کے بڑے سیل پوائنٹس ہاکی اسٹیڈیم میں کاؤنٹرز کی تعداد 10 کر دی گئی۔ کاؤنٹرز کی تعداد دگنا کرنے سے آٹے کی تقسیم کا عمل مزید بہتر ہو گیا۔ بس مجھے تو ابھی میں آیا ہوں تو مجھے آٹا مل رہا ہے اور بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ غریب کو آپ آٹا دے رہے ہیں، مہربانی آپ کی۔ بس ابھی میں آیا ہوں تو ابھی یہ آٹا مجھے مل جائے گا۔ اب بہاولپور کے شہری بآسانی آٹا لے کر خوشی خوشی گھر لوٹ رہے ہیں۔ دھکم پیل ہے نہ دھنگا مشتی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ شناختی کارڈ بغیر کسی لائن کے سکین ہوا اور فوری آٹا مل گیا۔ بابرکت مہینے میں مفت آٹا مل جائے تو اس سے بڑا ریلیف اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کچھ مستحق افراد بھی نااہل ہیں، ان کے لیے بھی مفت آٹے کا پیکج فراہم کیا جائے۔ جی اجے بہت خوشی دی گال ہے سی انہاں واسطے بھیجیں دے پین غریباں کیتے سہولت کریں دے پین، بڑی خوشی دی گال ہے۔ اللہ انہاں کو کامیاب کرے، صحت عطا فرمائے۔ بہاولپور شہر میں مفت آٹے کے 8 سیل پوائنٹس ہیں۔ گزشتہ روز نئے کاؤنٹرز کا اضافہ بھی کیا گیا۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویہ، روہی، بہاولپور۔ آٹے کے حصول سے رخ کریں گے بہاولپور کا، جہاں حکومت پنجاب کی طرف سے مفت آٹا فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ تاریخی 64 ارب کی سبسڈی کے ثمرات عام شہریوں تک پہنچنے لگے۔ مفت آٹا تقسیم پوائنٹس پر مناسب انتظامات سے رش ختم ہو گیا۔ آٹا پوائنٹس کا کیا کہنا تھا، مزید جانتے ہیں۔ یہ جو پہلے 2 دنوں میں بہت بد نظمی تھی، بہت زیادہ رش تھا ہمارے پاس، اب ہمارے پاس یہ کراؤڈ بہت زیادہ کنٹرول ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا اس کا حل یہ نکالا تھا کہ کاؤنٹرز بڑھائے ہیں ہم لوگوں نے۔ ہم لوگوں کے پاس پہلے 4 کاؤنٹرز ہوتے تھے، اب ہم نے 11 کاؤنٹرز کیے ہیں کہ عوام کو کسی بھی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عوام آئے، اپنا تھیلا، ان کا آئی ڈی کارڈ سکین ہوگا، وہ اہل ہوں گے اور وہ چلے جائیں گے، تھیلا لے گیا اپنا۔ اس کے بعد یہ تھا کہ ایک گھرانے کا ہر بندہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہر بندے کے 3 تھیلے الاٹ ہوئے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر گھرانے میں 3 تھیلے ہی آئے ہیں، بھلے وہ والد لے لے، والدہ لے لے، بیٹا لے لے یا بیٹی لے لے، اس طرح سے۔ رمضان پیکج ملتان میں آٹے کے 2.5 لاکھ تھیلے مفت تقسیم کیے گئے۔ 8.5 لاکھ شہریوں کو مفت آٹے کی فراہمی کے لیے 36 مراکز مکمل فعال۔ کمشنر انجینئر عامر کھٹک اور ڈی سی عمر جہانگیر کے آٹا مراکز کے دورے۔ کمشنر اور ڈی سی نے شجاع آباد اور جلال پور پیروالا کے سینٹر بھی چیک کیے۔ کمشنر کا شہریوں کی سہولت کے لیے چیکنگ کاؤنٹر مزید بڑھانے کا حکم۔ اس موقع پر کمشنر ملتان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب نے مستحق طبقے کے لیے مثالی رمضان پیکج دیا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ہر شہری کو 3 تھیلے فراہم کریں گے۔ بارش کے بعد تمام آٹا سینٹرز مکمل بحال کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں شناختی کارڈ سکیننگ کے حوالے سے شہریوں کو مؤثر آگاہی دی جا رہی ہے۔
अब आपको बताएंगे कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर के आटा तकसीम के मराकज़ के दौरे। कमिश्नर जीजी खान ने सेंटर्स में आटा की तकसीम का जायज़ा लिया। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने लोगों से भी मालूमात हासिल की। कमिश्नर डीजी खान ने सर्विस काउंटर्स पर मौजूदा अमले के भी हौसला अफजाई की है। कमिश्नर डीजी खान ने मेडिकल कैंप का भी मुआयना किया। हर सेंटर पर मेडिकल और रेस्क्यू के कैंप फाल किए गए। आटा तकसीम सेंटर्स में पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी फाल कर दिए गए हैं। आटा तकसीम मराकज़ में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने के भी अहकाम जारी किए गए हैं। डीजी खान में मुफ्त आटे की तकसीम को यकीनी बनाने के लिए पॉलिटिकल असिस्टेंट कोर सुलेमान मुश्ताक अहमद टवाना मुतहरिक। सुलेमान मुश्ताक अहमद टवाना का कबायली इलाकों में मुफ्त आटे के सेंटर्स का दौरा। मुफ्त आटे की मुस्तकीन में तकसीम के अमल को अहसन तरीके से फ्राहमी का जायज़ा लिया। मुश्ताक अहमद टवाना ने मुफ्त आटे की तकसीम वाले स्टाफ को खुसूसी हिदायत जारी की हैं। उनका कहना था कि कबायली इलाकों में मुफ्त आटे की तकसीम के सेंटर्स बनाए गए हैं। मुफ्त आटे की फ्राहमी के लिए तमाम सेंटर्स की खुद निगरानी कर रहा हूँ। लिया से खबर शामिल करेंगे। रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फ्राहमी जारी है। लिया में 30 ट्रैकिंग पॉइंट्स और यूटिलिटी स्टोर्स पर भी मुफ्त आटा फ्राहम किया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर ने मुफ्त आटे की फ्राहमी के अमल का जायज़ा लिया है। डेप्यूटी कमिश्नर ने इंतजामात को चेक किया और शहरियों से गुफ्तगू की। इस मौके पर डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था कि मुफ्त आटा पॉइंट्स पर शहरियों को तमाम सहूलियात फ्राहम की गई हैं। पॉइंट्स पर सिक्योरिटी और रेस्क्यू के खातिर खास इंतजामात किए गए हैं। और अब आपको बताएंगे डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर मंसूर खान बलोच का जामपुर के आटा पॉइंट्स का दौरा हुआ है, जिसमें बॉयज़ स्कूल, स्पोर्ट्स स्टेडियम, कॉमर्स कॉलेज, म्यूनसिपल पार्क के पॉइंट्स को चेक किया है। असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब इकबाल गुज्जर समेत रेवेन्यू स्टाफ मौके पर मौजूद है। डॉक्टर मंसूर खान बलोच ने आटा पॉइंट्स पर मज़ीद इंतजाम के अहकाम जारी किए हैं। इस मौके पर डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर शफाफ तरीके से आटा तकसीम किया जा रहा है। डेप्यूटी कमिश्नर ने SHO असद बलोच को आटा पॉइंट्स पर मोटरसाइकिल स्टैंड अलग से बनाने का हुक्म दिया है। इनका मजीद कहना था कि आटा पॉइंट्स पर खवातीन बुजुर्गों को कुर्सियां और दीगर सहूलियात फ्राहम की जाए। सोने की कीमतों के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। मुल्तान में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में सोने की कीमत में 3000 रुपये का इजाफा हुआ है। 24 कैरात सोना 2,05,000 रुपये फी तोला हो गया है। जानते हैं फराज रमज़ान से। जी बिल्कुल, सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। डॉलर की ऊंची उड़ान के बायस सोने का रेट भी बेकाबू हो गया है। बात करें सोने के रेट की तो 24 घंटे में सोने की कीमत में 3000 रुपये का इजाफा हुआ है। 24 कैरात सोने की अगर बात करें तो 24 कैरात सोने का जो रेट है 2,05,000 रुपये फी तोला हो गया। अगर दूसरी जानी बात करें 22 कैरात सोने की तो 22 कैरात सोने का जो रेट है 1,87,916 रुपये फी तोला मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर इसी के साथ साथ ग्राम के हवाले से बात करें तो 24 कैरात सोने का जो रेट है 17,575 रुपये फी ग्राम, जबकि 22 कैरात सोने का जो रेट है 16,100 रुपये फी ग्राम मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। सोने की बढ़ती कीमत के बायस कस्टमर के साथ साथ दुकानदार भी परेशान है। दुकानदार का कहना है सोना महंगा होने के बायस जो है कस्टमर का रुझान आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जा रहा है। अगर इसके साथ साथ बात करें तो इनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि सोना महंगा होने से इनका कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है और ये कारोबार बदलने पर मजबूर होने को हैं। जी फराज रमज़ान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रंगपुर में रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फ्राहमी जारी है। इंतजामिया की जानिब से बेहतर इंतजाम किए गए। शहरियों के लिए शामियाने और कुर्सियां लगाई गई। खवातीन का कहना है वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं। मुफ्त आटा आवाम की ज़रूरत है। रोज़ेदारों को मुकम्मल सहूलियात फ्राहम की गई हैं। शहरियों को मुफ्त आटा फ्राहम करना हुकूमत का अहसन इक़दाम है। रमज़ान मुबारक के दौरान खजूर की मांग में इजाफा हो गया। महंगाई की वजह से रोज़ादारों के लिए खजूरें खरीदना भी मुश्किल हो गया है। मुल्तान से रिपोर्ट कर रही हैं सुहिरा तारिक। रमज़ानुल मुबारक में खजूर को सहरो अफ्तार के लिए दस्तरख्वां का लाजमी हिस्सा समझा जाता है। मार्केट में दुकानों पर खजूर की मुख्तलिफ इकसाम सजा दी गईं।
खजूर की कीमतें ज्यादा होने की वजह से शहरी परेशान हैं। रमजान शरीफ में खजूरों के रेट बहुत बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से खरीदना, खजूर लेना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसमें कोई कोशिश करें कि कोई रियायती खजूर मिले और हमें रमजान शरीफ में अच्छा पैकेज मिलना चाहिए। मार्केट में अजवा खजूर 1000 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। ईरानी खजूर 800 रुपए फी किलो, जबकि दीगर इकसाम की खजूरें 600 से 750 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। 600, 650, 700 रुपए किलो नहीं फरोख्त करते तो यहाँ कोई हालात नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब की पहुंच से रोज़ा खोलना भी मेरा ख्याल मुश्किल हो गया यार। खुदा इन्हें पूछे, ये बहुत तबाही है मुल्क की। कोई हुक्मरान या कोई भी लीडर इस टाइम मुल्क के लिए नहीं सोच रहा। शहरी शिकवा करते हुए कहते हैं कि खजूर के रेट इतने ज्यादा हैं कि आम आदमी नहीं खरीद सकता। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। मियांवाली में खजूर की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। गुज़श्ता 15 रोज़ के अंदर खजूर की कीमत में 100 रुपये इजाफा हुआ है। 350 रुपये किलो बिकने वाली ईरानी खजूर 485 रुपये किलो हो गई। मेज़ मज़ाफ़ाती और दीगर इकसाम की खजूर 700 से 800 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी हैं। शहरियों का कहना है गरीब को खजूर खरीदना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। दुकानदारों का कहना है कि ईरानी खजूर 450 रुपये किलो में दे रहे हैं। दीगर इकसाम की खजूरें मंडी से बहुत महंगी मिल रही हैं। दुनियापुर में 23 मार्च के हवाले से प्रेस क्लब के ज़रिए तमाम रैली का इनेकाद। रैली मरकजी काज़मी चौक से 2 कोटा चौक तक निकाली गई। रैली में प्रेस क्लब के सदर बशीर भट्टा और मेंबरान की भरपूर शिरकत हुई। शुरका के पाक फौज के हक में बैनर्स उठाकर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। सदर प्रेस क्लब बशीर अहमद भट्टा का कहना था, पाक फौज की वजह से हम घरों में सुख की नींद सोते हैं। और अब आपको बताएंगे मियांवाली में मोटरवे टोल प्लाजा दाऊद खेल पर यूम पाकिस्तान का अमली मुजाहरा किया गया। मुसाफिरों का अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। मुसाफिरों और मोटरवे पुलिस ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था, हर कदम पर अफवाज पाकिस्तान के साथ रहने का अज़म किया गया है। यूम पाकिस्तान की तकरीब में मुसाफिरों को ट्रैफिक कवानीन से आगाही भी दी गई है। मुल्तान में चलते ट्रकों से माल उतरने का सिलसिला बंद न हो सका। रोज़ाना लाखों रुपए का माल चोरी होने पर ट्रांसपोर्टर्स टकरा कर रह गए। कहते हैं चलती गाड़ियों से माल चोरी होने के बायस कुछ ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स के घर का चूल्हा बुझ रहा है। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। वसीम शहजाद की रिपोर्ट में देखेंगे। मईशत की रीढ़ की हड्डी खतरे में पड़ गई। मुल्तान में हाईवेज पर चलते ट्रकों से माल उतरने का सिलसिला न थम सका। सदर जनूबी पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मलिक साजिद अवान कहते हैं कि आए रोज फिल्मी सीन्स की तरह गाड़ियों से माल उतर जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स के लिए घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। हुकूमत शहर में मुनज़्ज़म लुटेरों का खात्मा करे। जनूबी पंजाब में बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि ये आए दिन ये मामलात हैं, कंटेनर से चलती गाड़ियों से माल उतार लिए जाते हैं और उसके बाद उसका ना कोई चोर पकड़ा जाता है, ना FIR कटती है। अगर FIR कटवा भी ली तो चोर आज तक पकड़ा नहीं गया। 1-2 बार हमने पकड़वाए भी हैं, लेकिन वो उनको पुलिस ने बगैर चालान किए ऐसे ही उनको भगा दिया था, फारिग कर दिया था। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि मखदूम रशीद रोड, भावलपुर रोड और मुजफ्फरगढ़ रोड पर ट्रकों से माल उतरने के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। माल चोरी होने पर मिल मालकान ड्राइवर्स को चोर समझते हैं। इतनी ड्राइवर्स की तनख्वाहें नहीं जितना इनका क्लेम अदा करना पड़ता है। गाड़ियाँ जो माल लोड करके जाती हैं, ये मखदूम रशीद वाला रोड हो गया, ये वाला भावलपुर मुजफ्फरगढ़ रोड हो गया, इस रोड पे रात को हमारी गाड़ियों, हमारा बेवरेज का काम है, गाड़ियों से पेट उतर जाते हैं, पीछे से ड्राइवर आगे गाड़ी चला रहा होता है, पीछे से पेट उतर जाते हैं। तो पेट्रोलिंग पुलिस जी वो सिर्फ बैठ के अपना टाइम पास करती है, कोई पेट्रोलिंग नहीं करती। ट्रांसपोर्टर्स का मजीद कहना था कि हुकूमत हाईवेज पर चलती ट्रांसपोर्ट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। यही सूरत रही तो वो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। मुल्तान में हालिया बारिशों की वजह से सब्ज़ प्याज की फसल पर बीमारियों का हमला। दिसंबर की काश्त की गई सब्ज़ प्याज पर बारिश के बाद थ्रिप्स और फंगस के हमले जारी हैं। बीमारियों के हमले से फसल को नुकसान पहुंचा है। मजीद क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाह, हमने जनाब ये प्याज को दिसंबर में लगाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्याज अभी इंशाल्लाह इस महीने में इसकी हार्वेस्टिंग होगी जनाब। तो इसके ऊपर थ्रिप्स और जो है फंगस का बहुत ज़्यादा हमला हो रहा है, तो उसके ऊपर हम जो है दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और स्प्रे भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखते हैं, क्योंकि मौसमी हालात नमी बहुत ज़्यादा हो गई है, बारिशें हो रही हैं,
तो अल्लाह ताला इसके ऊपर मेहरबान। रहीम खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन डिस्पैटरी और इंजीनियरिंग अलाउंस दे दिए गए हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर ने मुलाजमीन में चेक तकसीम किए हैं। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर का कहना था, यूनिवर्सिटी की तामीर और तरक्की में इंतजामिया और असातिज़ा का टीम वर्क शामिल है। यूनिवर्सिटी मयार तालीम में मुसलसल आगे बढ़ रही है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने 25% डिस्पैरिटी अलाउंस की इजाज़त दी थी और वो हमने अपने मुख्तलिफ फोरम से अप्रूव करने के बाद आज मुलाजमीन को 25% जो डिस्पैरिटी अलाउंस है उसके चेक डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसके साथ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से भी था कि इंजीनियर अलाउंस दिया जाए। तो यूनिवर्सिटी में जो इंजीनियर्स टीचिंग में हैं उनको अलाउंस नहीं मिल रहा था, अभी हमने अप्रूवल करके उनको उसके चेक भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। स्पेशली जैसे कि आपने मेंशन किया कि रमज़ान से पहले हमारी कोशिश है कि महंगाई भी ज़्यादा है और मुलाजमीन सबसे ज़्यादा इस वक्त पिस रहे हैं, जो कि सैलरीज़ में उस हिसाब से इजाफा नहीं हो रहा जिस हिसाब से महंगाई की तरफ महंगाई बढ़ रही है। तो हमने कोशिश की है कि मुलाजमीन को जो कंपनसेशन मिल सकती है ताकि वो रमज़ान और पाकिस्तान इंटरनेशनल कुकिंग मुकाबले में हिस्सा लेने वाले शेफ़ के लिए तकरीब में शेफ़ को अवार्ड्स और शील्ड्स पेश की गई। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले शेफ़ की बड़ी तादाद की तकरीब में शिरकत हुई। कुकिंग मुकाबले में गौतम इंस्टीट्यूट के शेफ़ ने नुमाया पोजीशन हासिल की हैं। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल कुकिंग मुकाबले में हिस्से लेने वाले शेफ़ के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया है। मुल्तान में तकरीब में शेफ़ को अवार्ड्स और शील्ड्स पेश की गई हैं। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले शेफ़ की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक हुई है। कुकिंग मुकाबले में गौतम इंस्टीट्यूट के शेफ़ ने नुमाया पोजीशन हासिल की हैं। खेल की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। कौमी खेल हॉकी के लिए टैलेंट की तलाश। डिवीजनल कमिश्नर हॉकी टीम और जूनियर हॉकी लीग के लिए ट्रायल्स का इनेकाद। बहावलपुर में भी अंडर 20 खिलाड़ियों के ट्रायल्स लिए गए। बहावलपुर से 40 खिलाड़ियों ने अंडर 20 ट्रायल्स में हिस्सा लिया। मतीउल्लाह हॉकी स्टेडियम में मौजूदा और साबिक कौमी खिलाड़ियों ने ट्रायल्स लिए। डिवीजनल हॉकी टीम का सिलेक्शन के बाद बहावलपुर में तरबियती कैंप लगाया जाएगा। आपको बता रहे हैं, कौमी खेल हॉकी के लिए टैलेंट की तलाश जारी है। डिवीजनल कमिश्नर हॉकी टीम और जूनियर हॉकी लीग के लिए ट्रायल्स का इनेकाद किया गया है। बहावलपुर में भी अंडर 20 खिलाड़ियों के ट्रायल्स लिए गए हैं। बहावलपुर से 40 खिलाड़ियों ने अंडर 20 ट्रायल्स में हिस्सा लिया है। मतीउल्लाह हॉकी स्टेडियम में मौजूदा और साबिक कौमी खिलाड़ियों ने ट्रायल्स लिए। डिवीजनल हॉकी टीम का सिलेक्शन के बाद बहावलपुर में तरबियती कैंप लगाया जाएगा। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुल्तान में तस्वीरी नुमाइश तहरीक आज़ादी का सफ़र बयान करती 100 से ज़्यादा लाए हैं। एंड यहाँ पर हमने विज़िट किया है कि बहुत सारी तस्वीर लगाई गई हैं जिसमें कैप्शन दिया गया है, हमें पूरी हिस्ट्री बताई है किस तरह से पाकिस्तान की क्रिएशन की गई है, क्या क्या स्ट्रगल्स की गई हैं, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या क्या जो स्टेजेस थी, हमारे जो बड़े थे उन्होंने कौन कौन से स्टेजेस से गुजर कर मुल्क पाकिस्तान को बनाया है। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट्स कौंसल जाहिद इकबाल का कहना था कि ये तस्वीरें तहरीक आज़ादी का सफ़र और क़ायद-ए-आज़म की काविशों को बयान करती हैं। नई नस्ल के लिए ये नुमाइश किसी नेमत से कम नहीं। 1947 और उसके बाद तक भी क़ायद-ए-आज़म की जो एक मुख्तलिफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, तो वो एक हमने जो एक हिस्टोरिकल जो एक है विरसा है, उसको यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स के लिए और नौजवान नस्ल के लिए ख़ास तौर पे जो है वो डिस्प्ले किया है। नुमाइश के ज़रिए पाकिस्तान की तारीख से मुतल्लिक मालूमात हासिल हो सकती है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशफा आसिफ, मुल्तान। अलिशफा आसिफ की रिपोर्ट आपने जानी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।